मान्यता I'll है। use another illustration. मैं और एक विस्तार See, आपको we are बताऊंगा। all born facing the world and the devil. हम सब जन्मे हैं Facing the world and the devil. उस शैतान की ओर देखकर और पैसे की ओर देखकर, The world. संसार को देखकर, And God is behind us. और परमेश्वर हमारे पीछे है। And now, supposing God wants to give me eternal life. समझिए, हमें परमेश्वर अनंत काल का जीवन देना Say, चाहता है। here's eternal life. ये अनंत काल का जीवन है God wants to give it to me. और परमेश्वर मुझे ये देना चाहता है। I've got my back to Him. मेरा पीठ अगर परमेश्वर की ओर है। Do you know what repentance is? What is repentance? पश्चाताप क्या है? Turn around. फिर जाओ, परमेश्वर की ओर जाओ। I can't get it till I turn around. अगर मैं फिरता नहीं हूँ तो ये पा नहीं सकता I मैं। can't face like this and say, okay, I want eternal life. अगर मेरा चेहरा शैतान और जगत की ओर है, मैं The फिरा नहीं हूँ तो नहीं पा Lord सकता। says it's free, but turn around. It is free, but turn हाँ, around. ये मुफ्त में है लेकिन आपको फिरना है। And second thing, और दूसरी बात, faith. I have to take it. That is faith. विश्वास के साथ हमें इसे लेना है। It is that simple. ये बहुत ही आसान है। I have to turn around and take it. It's all free. मुझे फिरना है अपने पापों से और परमेश्वर से विश्वास से लेना है। You don't have to do any works. आपको कोई काम नहीं करना है। We cannot be saved by good works. हम अच्छे कामों से उद्धार नहीं पा सकते। I don't have to do so many things in order to get forgiveness of sins and eternal life. मुझे पापों की क्षमा के लिए, अनंत काल का जीवन पाने के लिए बहुत भले और अच्छे काम नहीं करने। But I have to turn around. मुझे मेरे पापों से फिरना है। I have to turn my back to the devil and the world. मेरी पीठ शैतान को और जगत को दिखानी है। See, a lot of people are willing to turn their backs to the devil बहुत से लोग हैं शैतान की ओर पीठ फेरना चाहते because हैं nobody likes the devil. क्योंकि शैतान को कोई नहीं चाहता, But they don't turn their backs to the world. पर वे अपनी पीठ संसार की ओर नहीं फेरते। God and the world are in opposite directions. परमेश्वर और जगत दोनों विपरीत दिशा में है। Let me show you a verse. मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ। James in chapter 4. याकूब इसका 4वां अध्याय। Now, to whom is James writing? याकूब ये किसको लिख रहा है? Chapter 2, he says, my brethren. दूसरे अध्याय में वो कहता है मेरे भाइयों। Verse 5, my beloved brethren. Chapter 2, verse 5, my beloved brethren. 5वें में कहता है हे मेरे प्रिय भाइयों। Chapter 3, verse 1, my brethren. तीसरे अध्याय में हे मेरे भाइयों। What is he telling my beloved brethren? वो क्या बताना चाहता है मेरे प्यारे भाइयों को? Chapter 4, verse 4. 4वां अध्याय और 4वां वचन। You adulteresses, don't you know that friendship with the world is hostility toward God, and whoever is going to be a friend of the world is the enemy of God? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करनी है? अतः यदि कोई संसार से मित्रता रखना चाहता है तो वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। So many of you have heard hundreds of sermons. आपने अनेक 100 उपदेश सुने होंगे। Have you ever heard a sermon on this verse? क्या इस वचन पर आपने उपदेश सुना है? That if you're a friend of this world, you're an enemy of God. क्या आप जगत के अगर मित्र हैं तो आप परमेश्वर के शत्रु हैं? False prophets will not preach that sermon. झूठे उपदेशक ऐसा प्रचार नहीं करेंगे। False prophets will only tell you how you can be healed and how you can get money from God. झूठे प्रचारक ये बता सकते हैं आप चंगाई कैसे पा सकते हो, परमेश्वर के And पैसे का कैसे पा They'll सकते हैं। never tell you that if you're a friend of the world, you're an enemy of God. वे कभी आपको नहीं बताएंगे कि अगर आप जगत के मित्र हैं तो आप परमेश्वर के See, शत्रु हैं। friend of the world is not a small weakness. पर जगत से मित्रता एक छोटी सी कमजोरी नहीं है। It says you become an enemy of God. ये परमेश्वर से शत्रुता है। And it makes you an adulteress. आपको ये व्यभिचारी बना देता है। You say he's speaking to worldly people. वो कहोगे आप ये वचन अन्य जातियों से कहा जा रहा है। My beloved brethren, मेरे प्यारे भाइयों और you बहनों, adulteresses. आप व्यभिचारी हो। See, these apostles spoke the truth. ये प्रेरितों ने सच्चाई बोली। They were like a doctor who gave you a good scan of your heart and said, listen, my friend, your condition is pretty serious. वे ऐसे वैद्य और डॉक्टर थे जिन्होंने हमारा पूरा स्कैनिंग किया और बताया भाइयों बहनों आपकी दशा बहुत बुरी है। And he doesn't even charge you for it. और उन्होंने उसके लिए आपसे कोई कीमत भी नहीं ली। But these false preachers, पर ये झूठे प्रचारक they won't give you a proper scan of your heart. आपके हृदय का अच्छा आपको स्कैन नहीं देंगे They say, oh, you're all right. You're going to heaven. God loves you. और ये कहेंगे परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप स्वर्ग जाओगे। And they charge you for it. और उसके लिए आपको वो कीमत लेंगे, They take your money. आपके पैसे लेंगे। The true servants of God are not interested in your money. They're interested in giving you a true scan of your condition. सच्चा प्रचारक ये नहीं आपके पैसे में रुचि नहीं रखेगा, लेकिन वो इस बात में रुचि रखेगा आपको अपने जीवन का हृदय का अच्छा वो स्कैन दे। Jesus was not, and the apostles, they were not interested in money from anybody. परमेश्वर यीशु के प्रेरित पैसे के लोभी नहीं थे। Not for themselves, not for their ministry.
उनकी सेवा के लिए और अपने लिए भी नहीं, They trusted God for that. वो सबके लिए But they परमेश्वर भरोसा gave रखते थे। people a true scan of their condition. वे लोगों को उनकी जीवन की परिस्थिति का सच्चा प्रमाण देते थे। Even if it was Peter. पतरस भी था। Peter, you are interested in your own things. पतरस तू अपने चीजों के लिए चिंता करता है, You're the devil speaking now. शैतान के तरह से तू बोल रहा है। What a scan that was. वो कितना अच्छा दशा था जताया Because जाना, Jesus loved Peter so much. जबकि यीशु पतरस से बहुत प्रेम करता था। The more Jesus loves us, the more strongly he rebukes us. जितना परमेश्वर हमसे ज्यादा प्रेम करता है उतना ज्यादा हमको ताड़ना भी देता है। Judas Iscariot was the real devil. जुदास इस्करियोत सच में शैतान था, But Jesus never called him the devil. परमेश्वर यीशु ने उससे शैतान नहीं कहा, He never turned around to Judas Iscariot and said, "You devil." और उसने यहूदा इस्करियोती को फिरकर कभी नहीं कहा शैतान। His rebukes to Judas were very gentle उसने यहूदा इस्करियोती को बहुत नम्रता से डांटा, because he knew that Judas Iscariot gets offended very quickly. क्योंकि वह जानता कि वो वापस जल्दी गुनाह करेगा। But Peter, he said, "Get behind me, Satan." पर उसने पतरस से कहा, No. शैतान मुझसे दूर हो जा। And what did Peter say? और पतरस ने क्या कहा? Jesus said, "Do you want to go away?" और परमेश्वर ने उससे कहा, क्या तू जाना चाहता है? And Peter said in John 6, "Lord, to whom shall we go? और पतरस ने वहाँ कहा यूहन्ना 6 में, हे परमेश्वर प्रभु यीशु हम कहाँ जाएं? You have the words of eternal life. तेरे पास तो अनंत काल के जीवन की बातें हैं। You called me Satan. तूने मुझे शैतान करके पुकारा, Those are the words of eternal life. वे अनंत काल के जीवन के वचन थे, Because you showed me my true condition. क्योंकि तूने मेरी सही दशा मुझे बताई। You showed me that when I'm seeking my own, I'm satanic. क्योंकि आपने मुझे बताया कि मैं खुद के लिए विचार करता I- हूँ, स्वार्थी हूँ और शैतान का हूँ। I've known the Lord for 50 years. I've known the Lord for 50 years. मैं 50 साल से परमेश्वर प्रभु यीशु को जानता हूँ, And I'm so thankful for the strong rebukes He has given me in my life. और मैं उन सब जोरदार ताड़नाओं के लिए और डांटने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जो He- उसने मुझे दी, He has also encouraged me. और उसने मुझे बहुत बार हिम्मत भी दी है। But a God who only encourages you and never rebukes you is a false God. लेकिन वह परमेश्वर जो केवल आपको उत्साहित करता रहता है और आपको ताड़ना नहीं देता, डांटता नहीं है, वो झूठा परमेश्वर I है। want to ask you, when was the last time you got a strong rebuke from the Lord for something wrong in your life? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपने पिछले समय कब परमेश्वर से जोरदार डांट और ताड़ना पाई थी? Yesterday? कल? Or never? क्या कभी नहीं? You're worshiping a false God. आप एक गलत परमेश्वर को पूज रहे हैं। The real Jesus encouraged people and rebuked them. सच्चा यीशु मसीह लोगों को डांटता था और सिखाता था। When we know Him, जब हम उसको जानते how do हैं, I know that I know Jesus? हम कैसा ये जाने कि हम परमेश्वर को जानते हैं? He encourages me and rebukes me. वो मुझे उत्साहित भी करता है और मुझे डांटता भी है। See John chapter 17. यूहन्ना इसका 17वां अध्याय हम पढ़ेंगे। We talked about eternal life. हम अनंत काल के जीवन के लिए पढ़ रहे हैं। What is eternal life? अनंत काल का जीवन क्या है? John 17 verse 3. यूहन्ना इसका 17वां अध्याय और 3रा वचन। Eternal life is to know Jesus Christ. और To know अनंत God and Jesus Christ. और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह को जाने जिसे तूने भेजा है। I want to say to all of you, मैं सबको कहना चाहता हूँ, you can begin to know Jesus Christ right now आप अभी से यीशु मसीह को जान सकते हैं। and you can have eternal life. The और- beginning of eternal life now. आप अनंत काल के जीवन की शुरुआत को पा सकते हैं। What do you have to do? आपको क्या करना है? Here is eternal life being offered. ये आपको दी जा रही है अनंत काल का जीवन। And I love the world. मैं दुनिया से प्रेम करता हूँ। I'm unwilling to humble myself and ask forgiveness from people मैं लोगों से क्षमा मांगने और अपने आप को नम्र करने में because रुकावट पाता हूँ, because I'm proud. क्योंकि मैं घमंडी हूँ। I love money. मैं पैसे से प्यार I करता हूँ love so many sinful things. और मैं कितने पाप की चीजों से प्रेम करता हूँ। I love my worldly friends more than godly people. मैं परमेश्वर के लोगों से ज्यादा संसार के मित्रों से प्रेम करता हूँ। But I make one simple decision today. आज मैं एक छोटा सा साधारण निर्णय लूंगा। I say, Lord, I don't have the strength. I don't have the strength. परमेश्वर मैं ये कहता हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं है, But help me. पर मेरी मदद कर I'm going to turn around today. कि मैं आज फिर जाऊं। I'm going to turn my back to all those things I lived for. मैं उन सब चीजों जिनके साथ मैं जुड़ कर रहा, आज अपनी पीठ फेरता हूँ I'm going to receive from you और मैं तुझसे लेता हूँ right now eternal life. अनंत काल का जीवन अभी।
I believe you died for my sins. आज मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे पापों के लिए मरा, You died to save me from all those wretched things I'm facing, उन सब बुरी चीजों से जिससे मैं फंसा हुआ था, सामना करा था, तूने which मुझे will फेरा है, destroy my life one day. जो मेरे जीवन को एक दिन नाश कर देंगी। You died to save me from it. तू मेरे पापों के लिए मरा, उनमें से मुझे बचाने के And लिए, you rose up from the dead. और तू मरो में से जी उठा, You're living. और तू जीवित है। I want you to come and control my life. मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन पर आकर अपना प्रभाव करे, Fill my whole life with your Holy Spirit. मेरे जीवन को पवित्र आत्मा से भर दे, उसे चलाए। Dear brothers and sisters, प्यारे भाई और बहनों, turn like that to the Lord. इसी तरह से परमेश्वर की ओर फिरे। You know, we have so many people who come to our church in Bangalore हमें कितने लोग हमारे पास बेंगलोर कलीसिया में आते हैं, who've told me after some years of being there, और वहाँ रहकर बहुत सालों के बाद उन्होंने मुझे बताया, they said, you know, Brother Zach, I thought I was saved before I came to CFC. मुझे ये लगता था CFC में आने से पहले कि मेरा उद्धार हो चुका है, But only after I came here, I discovered I was not really saved at all. तब यहाँ आने के पश्चात मुझे पता चला कि सच में मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं Because था। I never heard about repentance till I came here. यहाँ तक आने से पहले मैंने कभी पश्चाताप के विषय में नहीं सुना, Nobody explained to me what sin was. किसी ने मुझे बताया नहीं कि पाप क्या है। One 70-year-old man once said, I never knew that anger was a sin till I heard you preach on it. कोई 70 साल के व्यक्ति ने आकर मुझसे कहा कि क्रोध ये पाप है, ये मैं जानता नहीं था, And क्योंकि he मुझे was किसी ने सिखाया नहीं था। born in a Christian family. वो मसीह परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति था। Imagine going to church for 70 years and not knowing that anger is a sin. वो आश्चर्य की बात है, विचार कीजिए कि 70 साल से एक कलीसिया में जा रहा है और क्रोध एक पाप है, नहीं जानता How है। many of you believe every time you get angry, you're sinning? हम में से कितने विश्वास करते हैं कि हर बार आप और हम गुस्सा करते हैं तो हम पाप करते How हैं? many of you believe that every time you lust after a woman, you're actually committing adultery with her? हम में से कितना पूरी तरह से विश्वास करते हैं जब हम कुदृष्टि से किसी स्त्री को देखते हैं तो हम उसके साथ व्यभिचार How कर many चुके of हैं? you believe that when you click on a site to see some filthy thing on the internet, you're actually going and committing adultery with somebody? हम में से कितना विश्वास करते हैं कि हम गंदे चित्र को देखते हैं तो हमने उसके साथ व्यभिचार कर लिया है? I don't blame you. Your preachers never told you the truth. मैं आप पर दोष नहीं लगाता हूँ, आपके प्रचारकों ने आपको नहीं सिखाया See, है। if in a school everybody gets 0 in mathematics, it's because the mathematics teacher is bad. अगर किसी स्कूल में मैथमेटिक्स में कोई सब बच्चे 0 मार्क ले रहे हैं तो क्योंकि टीचर ने उसे सिखाया नहीं है। Dear brothers and sisters, प्यारे भाई और बहनों, today you can say, Lord, thank you for opening my eyes. परमेश्वर को धन्यवाद दो हमारी आंखें खोलने के लिए। I want to give my life to you. मैं अपना जीवन आपको देना I चाहता हूँ, want to know you, Jesus. मैं आपको जानना चाहता हूँ Say, परमेश्वर। Lord, don't spare me till I know you and you know me. मुझे छोड़ना मत परमेश्वर, जब तक मैं आपको जानूं और आप मुझे जाने। Let's bow our heads in prayer. आइए हम प्रार्थना करें। While our heads are bowed in prayer, I want you to pray this prayer. मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, You pray this prayer and silently in your heart. अपने हृदय में मेरे साथ ये प्रार्थना करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I want to know you. मैं आपको जानना चाहता हूँ, I want you to know me. आप मुझे जाने ये चाहता हूँ। I want to give my whole life to you. मैं अपना पूरा जीवन आपको देना चाहता हूँ। And today, आज I want to turn from all the wrong things in my life. मैं अपनी सब जीवन की बुरी चीज़ों से फिरता हूँ। I don't have the strength. मुझे ताकत नहीं है, Help me. मुझे सहायता कर। I believe you'll help me. मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे मदद I want करेंगे। you to come into my heart. मैं चाहता हूँ आप मेरे हृदय में आए। I want you to become Lord of my life. I want you to become Lord of my मैं life चाहता हूँ कि आप मेरे जीवन के परमेश्वर बने right now. इसी समय। I believe that you have accepted me. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मुझे स्वीकार किया है। Thank you for hearing my prayer. धन्यवाद मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। My life is going to be changed from today. मेरा जीवन आज से बदल जाएगा, I believe that. मैं ये विश्वास करता हूँ। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। For all those who made that decision today, जितनों ने यह निर्णय आज लिया है, I pray they will see a change in their life from today. मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ आज से उनका जीवन बदल I जाए। pray they'll be filled with the Holy Spirit मैं प्रार्थना करता हूँ वे पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएं and they will know you better and better every day. और वे आपको और बहुत अच्छी तरह से हर दिन जाने। We pray in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Amen.